ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम ये रसोई इसलिए चला रहे हैं कि हम लोगों की सेवा कर चुके हैं। मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप राजनीति में हो या आना चाहते हो, आप भी पहले सेवा करो। ये बात की बात है कि आप राजनीति में आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो। ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਜੀ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਸੌਰਵ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ? जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति में आना ना आना एक भविष्य का बड़ा सवाल है। ਕੀ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿ ਐ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ? जो सौरभ जैन एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से आज एक अस्पताल का एमडी भी है और ये रसोई आप लोगों के आशीर्वाद से चला पा रहा है, ये मेरी माँ का आशीर्वाद और मेरी जो पत्नी का सहयोग है उनके माध्यम से है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਸਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਸਤੇ ਦਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸੋਈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਓਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਜੀ, ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀਗਾ? सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक बात करें वर्धमान महावीर जनित रसोई,
ये अपने में एक बहुत बड़ा नाम है। वर्तमान भगवान के नाम से ये रसोई स्टार्ट की गई है और 25 अप्रैल को इसकी ओपनिंग की गई थी। और इस रसोई को खोलने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आज कोरोना के करके जो देश की अर्थव्यवस्था टूटी हुई है, आज पटियाला के जो आम पब्लिक जिनको रोजगार के साधन नहीं मिल पा रहे हैं या कम मिल पा रहे हैं या तनख्वाहें आधी मिल रही हैं, और जो ज़रूरतमंद लोग काम पे जाकर ठंडी रोटियां अपने घर से पैक करा कर लाते हैं और वो 6-6 8-8 घंटे के बाद वो खाना खाते हैं, तो ये रसोई उन लोगों को समर्पित है जो 10 रुपये में गर्म खाना खा सके। तो इस रसोई को खोलने का ये उद्देश्य है जी। सौरभ जी ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो दाल सब्जियां, टमाटर, आलू, आटा जो हमारे घर में यूज़ होता है, चावल, वही सेम क्वालिटी यहाँ पे यूज़ हो रही है। और मैं आपको दिखा दूं 2 मिनट के लिए, ये हमारी एक मशीन है, फूड क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग मशीन जी। इस मशीन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये जो सब्जियां हैं उनको साथ में देखो, पहले क्लीन तो करता ही करता है, साथ में डिसइंफेक्शन भी करता है जी। आप देख रहे हो कि ये सब्जियां जो देख रहे हो कि ये टमाटर यहाँ पे वॉश हो रहे हैं, और आप इसको एक बार पानी को जरा एक बार सूंघ के देखिएगा, पानी को सूंघ के देखिए एक बार, स्मेल लेके देखिए जी, स्मेल आ रही है जी, बहुत बुरी। हाँ, ये एक इसमें ओजोन गैस है जी। उस ओजोन गैस के माध्यम से ये सब्जियों को धोने के साथ साथ डिसइंफेक्टिंग भी कर रही है जी। ओजोन गैस जो है, जो बैक्टीरिया या यूरिया कोई लगे रह जाता है उसको साफ कर देती है जी। तो ये मशीन हमारी सारी सब्जियां धोने के लिए है जी। ठीक है सौरभ जी, ਜੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ कि ये भी वाश आउट के काम करती है या इस तो इलावा इसका कोई और काम? हाँ, अब आप हम देखते हैं, ये हमारी एक दूसरी मशीन है। ये जो छिलके वाली सब्जियां हैं जैसे कि आलू, गाजर, मूली, ठीक है, इस तरह की जो सब्जियां हैं उनको ये धोती भी है और साथ में उनका छिलका भी उतारती है। ये मशीन सिर्फ धोने के लिए थी, ये साथ में छिलका उतारने के लिए भी। आप देख रहे हैं कि इसमें ऊपर से पानी चलता रहता है, यहाँ से पानी चल रहा है, ये पानी इन सब्जियों को वॉश करता है। जो नीचे के ग्राइंडर हैं ये सब्जी को वॉश करते हैं, और जो ये ऊपर के आप ग्राइंडर देख रहे हो ये मशीनों का, ये सब्जी का जो छिलका है उसको उतारते रहते हैं। और यहाँ से हमने ये पानी के साथ इसको जो नाली बनाई हुई है उसके साथ ये सारा पानी अंदर जाता रहता है जी। आप देख रहे हैं ये आलू की क्वालिटी आप देख रहे हैं, ठीक है, कि ये आलू अब धुल के और छिल के तैयार हो चुका है। हमारा मोटिव है कि कम से कम सब्जियों को बार बार हाथ लगाया जाए, क्योंकि बार बार हाथ लगने से भी बैक्टीरिया आता है, आलू सब्जी काली पड़ती है और इन्फेक्शन फैलता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि साफ से साफ खाना जो हमारे घरों पे भी नहीं बनाया जाता, इस रसोई के माध्यम से, वर्तमान रसोई के माध्यम से मैं पटियाला और आसपास के लोगों को खिला सकूँ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? यहाँ पर जो भी खाना बनाया जा रहा है वो लगभग ऑटोमेटिक मशीनों के साथ खाना बनाया जा रहा है। आइए मैं आपको अपनी अगली मशीन दिखाता हूँ जी। अभी हम बात करते हैं चावल बनाने की। चावल सभी लोग आजकल देखते हैं कि आम भगोनों में बनाते हैं, बड़े बड़े भगोनों में बना देते हैं, चावल डाल देते हैं, ठीक है। हमारे पास एक मशीन है, ये हमारी एक मशीन है कि ये चावल बनाने की मशीन है। ये इडली भी बनाती है और चावल भी बनाती है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें 12 ट्रे लगते हैं, और आप चावल देख रहे हो कि ये चावल की जो क्वालिटी है आप देख रहे हो कि बिल्कुल खिला हुआ चावल, एक एक दाना खिला हुआ है जी, ठीक है ना जी, एक एक दाना इस चावल का खिला हुआ है। और ये सारा स्टीम्ड है जी, ठीक है। इसमें इडली भी बनती है, हम बीच बीच में यहाँ पे इडली और सांभर भी बनाने का हमारा इसमें प्रोविजन है। तो आप ये देख रहे हो कि टोटल स्टीम से चावल बनते हैं जी। सौरभ जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। हाँ जी, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। इससे पहले मैं आपको एक छोटी मशीन और दिखाता हूँ जी। ये एक छोटी मशीन हमारे पास और है जी। ये है जो टमाटर और चटनियाँ इनकी ग्रेवी बनाई जाती है। हम चटनी हमारे खाने में रोज जो लोग खाना खाने आ रहे हैं उनको चटनी बना के देते हैं। इस मशीन में हम चटनी पीसते हैं। तो
ये हमारी एक मशीन है जिसको हम आप देख रहे हो, इसमें टमाटर की हम पीसते हैं और हरे धनिया की पुदीने की चटनी बनाकर पीसते हैं, जिससे कि लोगों को चटनी मिल सके। और टमाटर पीसकर हम जो ग्रेवी बनाते हैं उसके लिए मशीन रखी हुई है हमने। अब हम बात करते हैं इस मशीन की। ये एक ऐसी अत्याधुनिक मशीन है, अमर जी, ये एक ऐसी मशीन है कि जिसमें कि हर तरह सब्जी ला डालो सब्जियां। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें कि हर एक तरह की सब्जी, चाहे वो कद्दू हो, चाहे वो लौकी हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो शिमला मिर्च हो, चाहे वो पालक हो, जो भी सब्जियां हैं उसमें आप जिस भी साइज में उस मशीन को सब्जी को काटना चाहते हो उसी साइज की आपको सब्जियां मिलेगी, चाहे वो सलाद के रूप में हो, चाहे वो सब्जी के रूप में हो। और जिसकी स्पीड, ये देखने में छोटी सी मशीन लग रही है ये 1 घंटे में लगभग 4 कुंटल सब्जी काटती है हाँ। और इसका भी फायदा यही है कि बार बार हाथ में लग के चीज़ों को इन्फेक्शन ना हो। हमारा मोटिव यहाँ पे भी इसमें भी यही है। मैं आपको एक छोटा, वैसे आज हमारा खाना भी लगभग तैयार हो चुका है, फिर भी मैं आपको एक मशीन चला कर दिखाता हूँ। ये मशीन 1 घंटे में लगभग 4 कुंटल सब्जी किसी तरह की भी हो, पेठा हो, कद्दू हो, लौकी है, आलू है, शिमला मिर्च है, पालक है, आप जो मर्जी सब्जियां इस मशीन में काट सकते हो। सौरभ जी, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਰਭ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ? देखो, कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। जो लोग ये कहते हैं कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, राजनीति भी एक देश का, एक उन लोगों का एक हिस्सा है जो राजनीति के माध्यम से जो कहते हैं कि हम राजनीति में इसलिए आ रही है कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं आज समाज की सेवा कर रहा हूँ। अगर राजनीति में कल को कोई बंदा आता भी है तो वो सेवा के लिए अगर आना चाहते हैं तो उसको आना चाहिए। मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो इस तरह की छोटी सोच रखते हैं कि ये रसोई इसलिए खोली गई है कि राजनीति में आना चाहते हैं। हम ये रसोई इसलिए चला रहे हैं कि हम लोगों की सेवा कर चुके हैं। मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप राजनीति में हो या आना चाहते हो, आप भी पहले सेवा करो। ये बात की बात है कि आप राजनीति में आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ है। आप देख रहे हो कि ये एक हमारी रोटी बनाने की मशीन है और यहाँ पे घर की तरह बिल्कुल फूला हुआ फुल्का आ रहा है। यहाँ से ये देखो रोटियाँ इसमें बन रही हैं और आप देख सकते हो कि घर की तरह बिल्कुल फूला हुआ फुल्का यहाँ पे आ रहा है जी, ठीक है। तो ये 1 घंटे में लगभग 1200 रोटी बनाता है और जिससे कि हम रिदम में गरम गरम खाना लोगों को बनता रहे। ये साथ के साथ रोटी बनती रहती है और हम लोगों को गरम गरम खाना खिलाते रहते हैं। सौरभ जी, जेकर ਅਸੀਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ? ये लगभग 2 लाख के करीब की एक मशीन है और एक हमारे पास इसका एक बहुत बड़ा मॉडल भी है जो आप देख सकते हैं। वहाँ पे एक मशीन और है, वो एक ऐसी मशीन है जिसमें यहाँ पर पेड़ा हम हाथ से बना रहे हैं। वो एक ऐसी मशीन है जिसमें पेड़ा भी मशीन खुद बनाती है, ठीक है। ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਐ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। देखिए, पहली बात तो मैं जिस परिवार से हूँ, मैं आज जो भी कुछ हूँ, मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी वाइफ है और मेरे 3 बेटे हैं। तो आज जो सौरभ जैन एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से आज एक अस्पताल का एमडी भी है और ये रसोई आप लोगों के आशीर्वाद से चला पा रहा है, ये मेरी माँ का आशीर्वाद और मेरी जो पत्नी का सहयोग है उनके माध्यम से है। तो ये सारा कुछ उस वाहे गुरु परमपिता के आशीर्वाद से यहीं से कमाया है। अगर हम अपनी कुछ कमाई का अंश यहाँ पे निकाल के लगा रहे हैं तो उसमें मेरे परिवार को दिक्कत नहीं है, उनको फक्र है कि मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ जी। ਸੌਰਭ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ये भी एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसको कि हम यहाँ पर ये 300 लीटर की एक टाइम में कोई भी दाल सब्जी, ठीक है, जैसे आज राजमा बना हुआ है, ठीक है जी, तो ये सब्जियाँ इसमें बनती हैं।
और इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि इस मशीन के माध्यम से इसमें जो गैस की कंजप्शन होती है वो आम जो हम चूल्हों पे भट्टियों में खाना बनाते हैं, भगोनों में खाना बनाते हैं, उसके मुकाबले ये 3 गुना ज़्यादा गैस बचाती है जी। और उनके मुकाबले ये लगभग आधा टाइम लेती है दाल या सब्जी बनाने के लिए जी। तो ये 300 लीटर की हमारी एक दूसरी मशीन ये है। ये एक छोटी मशीन है जो इससे छोटी है, ये 200 लीटर कैपेसिटी की है और जब इसमें खाना बन जाता है तो यहाँ से हम ऐसे इसको करके नीचे भगोना रख देते हैं और उसमें ये दाल सब्जी जो भी है वो नीचे चली जाती है। सौरभ जी एक सवाल मैं मुड़ फिर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? जिस दिन ये वर्धमान महावीर जनहित रसोई जी यहाँ पे स्टार्ट की गई थी उस दिन मैंने ये वचन लिया था, प्रण लिया था जी कि अगर इस पे किसी दुष्टों की निगाह ना पड़ी जी तो ये रसोई ऐसे ही चलेगी और मेरा वचन है जी। कि 25 अप्रैल 2021 को रसोई स्टार्ट हुई है, कम से कम 25 अप्रैल 2024 तक इस रसोई का जो खाने का रेट है 10 रुपये थाली ही रहने वाला है, जिसमें 4 रोटियां, दाल सब्जी, चावल और एक चटनी मिनिमम है। जैसे भगवान बीच में कई बार गुड़ की सेवा दिलवाता है अलग से, कई लोगों के माध्यम से आइसक्रीम की सेवा अलग से मिल रही है, वो चालू रहेगी जी। और रुक करते हैं अगली मशीन बारे, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੋਲੇ। सौरभ जी इस बारे ਸਾਨੂੰ डिटेल च दसो कि ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ है की ਕੰਮ करती है? ये हमारी मशीन है जंबो जेट मशीन, ये भी रोटी बनाने की मशीन है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो हमारा टारगेट है आज लगभग यहाँ पर 1100 लोग पर डे खाना खा के जा रहे हैं हमारी वर्तमान रसोई में। जब हमारा टारगेट है कि जब लॉकडाउन खुलेगा और लोग और ज़्यादा आएंगे, लगभग 2-3 हज़ार लोगों की उम्मीद है कि पर डे खाना खाया करेंगे, तो ये मशीन उसकी तैयारी है। ये 1 घंटे में लगभग 3000 रोटियाँ बनाता है और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसमें जो हमारी एक ऑटोमेटिक मशीन है आटा गूंथने की मशीन, उसमें से आटा गूंथ के यहाँ पे हम इसमें आटा डालते हैं और यहाँ से ये आटा खुद पेड़े भी अपना आप बनाता है जी, रोटियाँ भी अपना आप सेकता है और रोटी के ऊपर ऑटोमेटिकली घी भी खुद ही लगाता है। अभी इस मशीन को हम थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास गरम गरम फुल्का बन रहा है और अभी 1100 बंदे के लिए वो छोटी मशीन पर्याप्त है, लेकिन हमारी भविष्य की तैयारी बिल्कुल तैयार है जी। सौरभ जी इस तो इलावा भी इतने ਜਿਹੜੀਆਂ कोई होर मशीनां काम करती हैं खाना बनाने वाली? हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक मशीन हमारे पास ये है, ये हमारी एक चक्की है जी। आप देख रहे हैं कि इसमें दाल चावल और जो भी कोई आपने पिट्ठी पीसनी है वो पिट्ठियाँ इसमें पिस जाती हैं। कल को आपने कोई बेसन की पकौड़ियाँ बनानी होती हैं, तो आपने चने की दाल पीसनी है या आपने इसमें इडली बनानी है, तो चावल और दाल वगैरह पीसने के लिए मशीन है जिसमें कि दाल और चावल पीस के इसका जो पिट्ठी तैयार होती है। यानी कि सौरभ जैन जी ने पूरी तैयारी कर रखी है कि जेकर 100 तो गिनती हज़ारां च भी जाती है तो इतने लोगों को फिर भी उस तरह जो रोटी मिलेगी। 1000 तो क्रॉस कर चुके हैं जी। और ये एक हमारी मशीन है, ये आटा गूंथने की मशीन है, इसको भी ध्यान रखा गया है कि बार बार हाथों से आटा ना गूंथा जाए, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन नाखूनों के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से ना पहुँचे। और ये कई बार आटा गूंथते हुए मक्खी या मच्छर भी बीच में आ जाता है, इसीलिए ये हमने मशीन ली है, आटा गूंथने की मशीन है। इसमें आटा डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं और इसको ढक के ये हम ढक देते हैं और 7 या 8 मिनट में ये आटा गूंथ के तैयार हो जाता है जी। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੌਰਭ ਜੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਜੀ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਸੌਰभ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ? आज पूरे पटियाला का आसपास के लोगों का, आज आम पब्लिक का, आज गरीब भाई का जो अटूट प्यार, जो संगत का, जो संतों का अटूट प्रेम और अटूट आशीर्वाद आज इस वर्धमान रसोई के माध्यम से मुझे मिल रहा है। मैं पूरे पटियाला वासियों का हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवादी है और जो लोगों का प्यार ऐसे ही मुझे मिलता रहेगा, यह रसोई इससे भी अच्छी ऐसे ही भविष्य में भी चलती रहेगी। जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति में आना ना आना एक भविष्य का बड़ा सवाल है। जैसी पब्लिक की मर्जी होगी, पब्लिक का आदेश होगा और जैसा देश की व्यवस्था के लिए, पंजाब की व्यवस्था के लिए कोई भी माहौल होगा उसके लिए देखा जाएगा। अभी मेरा किसी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं। यानी कि सौरभ जैन जी किसी भी हालात च होण पर लोकां नाल उदां ही खड़े ने, लोकां दी सेवावां लई उदां ही खड़े रहणगे। देखिए, हमारा काम अगर हम समाज में
किसी अच्छे पद पर आसीन है, किसी पावर में है। आज आपके लोगों के माध्यम से मैं वर्धमान महावीर हॉस्पिटल का एक डायरेक्टर भी हूँ। तो आज अगर भगवान ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं लोगों का इलाज करवा सकूँ या मैं लोगों को खाना खिला सकूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कम से कम अफोर्डेबिलिटी के साथ मैं लोगों के साथ खड़ा रहूँ, क्योंकि आज लोगों की ज़रूरत है और मैं हमेशा अपने पटियाला के साथ, अपने पटियाला वासियों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। धन्यवाद।